Let's read from Vachaspati Mishra, the 49th Karikana. कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। कारिका नंबर 49। The injuries of the 11 organs together with the injuries of the buddhi are considered to be the disabilities. The injuries of the buddhi are 17, owing to the inversion of contentment and success. समझ में आया या कुछ भी नहीं समझा? सबसे पहले तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ विपर्यय की सॉरी 4 कैटेगरीज ऑफ प्रत्यय सर्ग, वहां से ये कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ था। क्या क्या है? विपर्यय, फिर तुष्टि, फिर क्या था? अशक्ति और सिद्धि। तो विपर्यय के 5 प्रकार बताए और उन 5 के 62 प्रकार बताए। तो पिछले जो 3 सूत्र थे वो पहला विपर्यय पे था, फिर उसके बाद में विपर्यय नहीं, 2 सूत्र, 3 सूत्रों में 4 कैटेगरी बताया था पहले, फिर दूसरे के अंदर विपर्यय के 5 कैटेगरीज बताए थे, और उसके बाद वाले में 48 के अंदर 62 टाइप्स ऑफ विपर्यय बताए थे, राइट? एंड नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग की सेकेंड कैटेगरी है अशक्ति, द इंजरीज ऑफ द 11 ऑर्गन्स। हमको मालूम है 11 इंद्रियां हैं हमारे। हाँ। महत में से अहंकार, अहंकार में से सात्विक, अहंकार में से इंद्रिय। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं उसकी अंदर जो कमियां हैं, अशक्ति है या इंजरीज कहो, इंजरीज ऑफ द बुद्धि आर कंसिडर्ड टू बी द डिसेबिलिटी। अब इंजरीज ऑफ द बुद्धि कहने के अंदर एक और तात्पर्य है, वो ऐसा कि बुद्धि में जो शक्ति है वो उससे कम अहंकार में है, क्योंकि थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फिर अहंकार में जो शक्ति है उससे 11 डिफरेंट टाइप्स में पक गए, तो यानी अहंकार की सारी शक्तियां तो नहीं है ना, वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है ना? तो द वर्ड इंजरीज ऑफ द बुद्धि, इसको ऐसे समझना है। एवोल्यूशन होने में उसका सत्व गुण बदल रहा है ना, कम कम होता जा रहा है। हाँ। तो इंजरीज ऑफ द बुद्धि ऐसे समझना है उसको, आर कंसिडर्ड टू बी द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अशक्ति है ना, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रत्यय सर्ग। The injuries of the buddhis are 17, owing to the inversions of contentment and success. आगे पढ़े। As cause of injuries to the buddhi, they are mentioned as the injuries of the organs and not as independent form of disabilities by themselves. The 11 disabilities are बधिरम्रय हाँ, वो भले नहीं पढ़ा जाए तो जाने दे, is वो defense संस्कृत is के अंदर डिसेबिलिटी का नाम दिया है। okay is deafness डेफनेस, deafness सुनने सुन नहीं हाँ सकना। सुनने का डेफ बोलते हैं ना वो। is the disability of the ear. Numbness is the disability of the skin. Blindness, the disability of eye. Tasteless, the disability of tongue. Insensibility of the olfactory नोज, nerves.
the disability of nose, dumbness, the disability of speech, paunia is the palsy palsy of the hand. palsy of the hand, the नहीं होता है ना? disability, the disability of the hand, lameness, the disability of the foot, चल नहीं सकना, हाँ, लंगड़ापन. impotency, the disability of the generative organ, intestinal paralysis, the disability of the anus, Constipation हो या lose motion हो. and mandanta is stupidity, the disability of the mind. These are the 11 disability of the 11 organs, such as the auditory organ and the rest. ये तो क्लियर है. ठीक है, Hmm. आगे. The disability of the buddhi with regard to its own function is caused by the injuries of the senses. The buddhi is considered to have 11 disabilities owing to the 11 causes of disability. These have been treated on for because of the theory of non-difference between the cause and the effect. आप बोलते हो ना वो सत्कार्यवाद. वही है. हाँ. Having thus described the disability of the buddhi through the injury of the sense organs, the natural disabilities of the buddhi itself are described together with the disability of the buddhi. How many are the natural injuries of the buddhi itself? This is answered. 17 are the injuries of the buddhi. Why? Due to inversion of contentment and success. Contentment in ninefold, hence the disability caused by its inversion are also ninefold. Similarly, success is eightfold. Hence, the disabilities caused by its inversion are also eightfold. It has been said that contentment is ninefold. Okay. They are being enumerated. तो एक्चुअली हमको अशक्ति पूरा तब समझ में आएगा जब हम बाकी के दो कैटेगरी भी पूरा सा जान लेंगे. दूसरी दो कैटेगरी है तुष्टि और शक्ति, सॉरी सिद्धि. तो तुष्टि यानी कि वैसे ट्रांसलेशन करो संतोष, कंटेंटमेंट है ना, कंटेंटमेंट. और सिद्धि तो ऐश्वर्य है, यू नो, दे आर समथिंग पॉजिटिव. तो जैसे सेंसेस तो काम की चीज है ना, वो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उससे कुछ ढंग का काम होता है, मीनिंगफुल है. वैसे ही तुष्टि भी अच्छी चीज है, हमने एज अ नियम सीखा है. और ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य है ही, सिद्धि तो सिद्धि है ही. वो तो सिद्धि बोलते हैं, यानी बड़ी चीज हो गई. तो ये वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव है. सेंसेस भी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन वो उलट जाएं तो लाइक सेंसेस भी सारे अब्यूजिव हो जाते हैं ना. हमको टेस्ट का सेंस दिया है ताकि हम बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन हम अब्यूज करते हैं टेस्ट को. बराबर है. हमको आंखें दी है ताकि हम अच्छा देखें, लेकिन हम आंखों को अब्यूज करते हैं. कान दिए हैं भगवान का भजन सुनने के लिए, लेकिन हम उसको अब्यूज करते हैं. अनूप जलोटा. तो सारा जो इंजरीज है टू द सेंसेस सिमिलरली वो अपोजिट अब्यूज करके, वैसे ही तुष्टि और सिद्धि. तुष्टियां हैं 9 और सिद्धियां हैं 8. 9 और 8 मिलके हुए 17. तो वो 17 और ये 11 टोटल हुए 28. तो इंजरीज आर 28 टाइप्स. विपर्य 5 टाइप के थे, लेकिन 5 के 62 टाइप्स बताए हमारे को बाद में. वो पांचों के 62 टाइप्स हैं.
इंजरीज बोलो तो 28 टाइप्स की इंजरीज बताई हैं। तो वो 28 इंजरीज कैसे हुई? इंद्रियों की, तुष्टियों का उल्टा और सिद्धियों का भी उल्टा, ये मिला के 28 इंजरीज। टाइप्स ऑफ इंजरीज हैं। तो तुष्टि का और सिद्धियों का इंजरीज कैसे होता है और वो कौन कौन सी हैं, वो अगली दो कारिकाओं में सीखेंगे हम, जब हम तुष्टि और सिद्धियों के बारे में सिद्धियों। डिटेल्स जानेंगे। 9 तभी। और 8 क्या हैं। तो इस कारिका के अंदर हम जो 11 इंद्रियों की डिसेबिलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं, जिनको डिटेल किया गया है। ठीक है? तो नाम जानना तो ठीक है, इंग्लिश में जानो, हिंदी में जानो, गुजराती में जानो, संस्कृत में जानो, लेकिन क्या हम और कितने इन डिसेबिलिटीज से ग्रसित हैं? आर वी, एंड हाउ मच आर वी अफेक्टेड बाय disabilities of any of these indriyas? तो एक्चुअली चाहिएगा कि हम ये 11 इंद्रियां जो लिखी हुई है यहाँ पर, ईयर्स से लेके माइंड तक की, हम इन 11 इंद्रियों के नाम लिख ले में और हर एक के अगेंस्ट हम उनको कितना सकारात्मक ढंग से यूज करते हैं और कितना हम उसको अब्यूज करते हैं। उसके लिए यदि अपने आप को 10-10 में से मार्क्स देवें तो कितने मार्क्स तुम दोगे अपने आप को, उसके पॉजिटिव यूज के लिए और उसके नेगेटिव यूज और इफेक्ट के लिए? तो मेरे को लगता है ये होमवर्क हमारे को सबको अभी करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, करोगे सब? हम्म। हम्म? और करने के बाद में या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में लिख दो अपने ग्रुप के अंदर ही, या बुक में पेपर में लिख के उसका फोटो निकाल के उसमें डाल दो। क्योंकि जब तक हम ये विचार नहीं कर लेंगे, ये खाली अशक्तियों को जान के हम उसका कुछ उपाय यदि नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं, ऐसे इन जनरल हम सोचेंगे तो हमारे को इक्का दुक्का इंद्रिय का ही ध्यान आएगा। लेकिन हर एक इंद्रिय को हम यदि मार्क्स देंगे ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, तो हमारे को सही ढंग से अशक्ति समझ में भी आएगी और अपने आप को ऑब्जर्व करने को भी मिलेगा कि नहीं, उस समय मेरे को ये नहीं याद आया था इसलिए मैंने अपने आप को 6 नंबर दे दिए, नहीं लेकिन इसके अंदर ये तो 8 नंबर जितनी है ना, लाइक दैट। तो अभी एक बार एक्सरसाइज करोगे इसको, तो तुम रोज इस पन्ने को खाली देखोगे भी तो तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ेगी। और बहुत सारी अशक्तियां तो ऐसी है जिसको तुम जान लोगे तो भी छूट जाएगी वो। जस्ट अवेयरनेस इटसेल्फ विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ दैट वीकनेस। ठीक है? हम्म। तो उस अशक्ति को पहले हम पहचान लेंगे बाय राइटिंग इट्स नंबर एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। ठीक है? 1 मीन्स बहुत हाईएस्ट और 10 मीन्स एकदम लो। नहीं, 10 इज हायर, जैसे ओके। नंबर्स हैं वैसे ही रखो। ओके। 10 1 इज इज हायर। लो, यानी तुम क्या करोगे बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखोगे या खाली नेगेटिव लिखोगे? नहीं नहीं, दोनों लिखेंगे। हाँ। एक को कैसे लिखेंगे? हाँ, तो लेकिन साथ में मत लिखना। पॉजिटिव लिख रहे हो तो पहले सबका पॉजिटिव लिखो। हम्म। यदि दोनों लिखना है तो खाली पॉजिटिव करो, फिर बाद में खाली नेगेटिव करो, या खाली नेगेटिव करो और फिर बाद में खाली पॉजिटिव करो, या दोनों में से एक ही करो। अभी अच्छा, तुम ऐसा करो, अशक्ति की बात कर रहे हैं ना, चलो नेगेटिव वाले को नंबर दो खाली। ठीक तुमको है। कितना लगता है यर्स को तुम कितना अब्यूज करते हो, कितना तुम गलत इस्तेमाल करते हो यर्स का? या एक और चीज भी है, जब गलत इस्तेमाल की बात है, कम सुनना भी अशक्ति है उस इंद्रिय की, और न सुनना भी
यानी सुनने की शक्ति तो है, लेकिन दूसरा कोई क्या बोलता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। राइट। ये हम्म, अशक्ति है। बराबर है। हम्म। दूसरा जब बोल रहा होता है तब हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्या बोलूंगा। वो कब चुप होता है मेरे को बोलने का है। बराबर। है ना। तो लिसनिंग चलो नंबर स्किल। दो अपने आप को। लिस अशक्तियों के ऊपर नंबर दो, 11 पे। तो 11 इंद्रियों की अशक्तियों पे अपने आप को क्रम संख्या दो कि कितनी अशक्ति है हमारे उस ऑर्गन की। मैम लिस्टिंग करते हैं पहले तो। हाँ पहले लिख लो, मैं लिस्ट सेम करो सब। चलो पहले ईयर। एक मिनट हाँ। हम्म। यहाँ पर जो सीक्वेंस है हम वही यूज करते हैं, ठीक है। ईयर। फर्स्ट ईयर, देन इज स्किन, देन आईज, देन टंग, देन नोज। ईयर, स्किन, आईज, टंग, नोज। ठीक है। फिर सिक्स्थ इज स्पीच, सेवन हैंड, एट फुट, नाइन generative organs, 10 anus, 11 mind. ठीक है, we'll use the same sequence so it is easy for us to communicate also with each other on this. और ज्यादा टाइम मत लगाओ, बहुत सोचो मत। इमीडिएटली जो ध्यान में आता है एक बार वो नंबर दो, because that will help you to just get started. It's only to get started. Let those numbers keep changing every day, no issue. And positive, negative, both are done together. I find people अब नेगेटिव में अपने आप को 3/10 दिया तो यहाँ पर 7/10 दे देते हैं विदाउट थिंकिंग। तो विल डू दैट सम अदर टाइम। इस समय वी आर डूइंग द डिसेबिलिटी, सो लेट्स बिकम अवेयर ऑफ डिसेबिलिटी। सुमति, डू यू? हाँ अभी के लिए सिर्फ नंबरिंग किया है, हाँ मतलब वही क्या करने का नंबर। है। वही तो हाँ करना है। वही किया है। हाँ तो बस ठीक है, देन दैट्स डन। लेट्स ओके। कंटिन्यू। अभी इसका क्या करोगे? विच ऑफ देम इज वर्स्ट फॉर यू, उसके ऊपर क्या करोगे? सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी कौन सी इंद्रिय की है? कुछ उस पर डिस्कस करना है, कैसे उसका तरीका है उसके अंदर से बाहर निकलने का? या कहीं पर तुम्हारे को डाउट लगता है कि नहीं ये इतना ऐसे नहीं होगा, या चेक करना चाहिए?
अवेयरनेस ऑफ सेंसेस, इन अदर वर्ड्स ऑल द 11 सेंसेस, वो बढ़ाना है हमारे को इस एक्टिविटी के थ्रू। या क्या क्या तुम्हारे को एग्जाम्पल ध्यान में आए जिसकी वजह से तुमने जो मार्क्स दिए अपने आप को वो मार्क्स दिए? कौन सा है इसका जिसके ऊपर अभी वीसीटी करना है? कौन सा ऐसा है जिसको देख के हमारे को शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है, जिसको कि एकदम चेंज करना ही है? मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, एक का भी आंसर नहीं मिला। भगवान, मैं तो सोच रही हूँ। सोचने के लिए ही पूछे हैं। तो यदि एक भी कोई ऐसा है जिसके ऊपर अभी लगता है कि अभी वीसीटी करूं, तो बोलो तो साथ में करते हैं, नहीं तो पॉज करते हैं एक बार। मैम स्पीच, फूड, माइंड, ये 3 आया। सेम सेम, स्पीच मेरा फुट नहीं है, मेरा है टंग, स्पीच और माइंड। माइंड इज कॉमन। मेरा उसमें मतलब हाईएस्ट है। कोई नहीं ना, क्योंकि हर एक में माइंड तो घुसता ही है। तो चलो एक जनरल वीसीटी माइंड के ऊपर करते हैं। तो क्या बोले, इंजरी टू माइंड, अब्यूज द माइंड, और वी यूज इट रॉन्गली, क्या बोलना है? यूज इट रॉन्गली, अब्यूज द माइंड नहीं, यूज इट, ओके क्योंकि सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है ना, वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है। फिर ओके। क्या बोलते हैं, नहीं सोचना चाहिए, वो सोच रहे हैं। सुमति तू क्या बोलती है? हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब ओके एंटरटेनिंग दैट थॉट्स। ठीक है, सो लेट्स डू दिस वीसीटी। और ये सब जो समझ में आया माइंड के बारे में, तो वो क्या फील क्या हो रहा है उससे? मतलब कि अगर माइंड को सही दिशा में लगाओ ना, तो और एनर्जी वे यूज कर सकते हैं और अपना और आगे जाके सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। वो तो पॉजिटिव हो जाएगा तभी, ओ, वो चूजिंग के लिए अपन यूज करेंगे इसको। लेकिन हाँ अभी फील क्या हो रहा है? अभी ये तुम लोग ने जो बोला कि माइंड हाँ। मेरा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, व्हेन यू आर सेइंग दैट, हाउ एनर्जी आर यू ड्रेन, फीलिंग अबाउट योरसेल्फ? क्या बोली तुम? ड्रेन, अच्छा, एनर्जी ड्रेन, ड्रेन, एनर्जी ड्रेन। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? एनर्जी ड्रेन। एनर्जी ड्रेन तो वो तो एनर्जी की बात हुई, फीलिंग क्या है? फीलिंग में फीलिंग है गुड है, बैड है, फीलिंग अशेम्ड ऑफ इट, या ठीक है, ऐसा ही सबको भी होता है, मेरे को भी हो रहा है, नो फीलिंग, सो व्हाट बिग डील? बुरा लगता है ऐसा सोच के, इतना सारा ज्ञान लेके भी ऐसा सोचना तो गलत ही वही है ना। बोल रही हूँ, आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। यस। So that's what the tapping has to be about. Because tapping में feeling is very important, no? चलो हम्म, छोड़। start tapping, karate chop. Even though इवन दो I'm feeling bad आई एम फीलिंग बैड for this disability of my mind, फॉर दिस डिसेबिलिटी ऑफ माई माइंड, still I deeply and completely स्टिल आई डीपली एंड कंप्लीटली love, लव, forgive, फॉरगिव and accept myself. एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, Even though इवन दो I'm not liking आई एम नॉट लाइकिंग this disability of my mind, दिस डिसेबिलिटी ऑफ माई माइंड, I deeply and completely आई डीपली एंड कंप्लीटली love, लव, forgive, फॉरगिव and accept myself. एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, Even though इवन दो I know everything, I know everything,
Still, I'm using my mind wrongly. I'm using my mind wrongly. I deeply and completely I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. Eyebrow point, this disability of my mind. This disability of my mind. Eye end point, this abuse of my mind. This abuse of my mind. Below the eyes, this wrong use of my mind. This wrong use of my mind. Below the nose, this disability of my mind. This disability of my mind. Chin groove, this abuse of my mind. This abuse of my mind. Below the collarbone, this wrong use of my mind. This wrong use of my mind. Below the armpit, this disability of my mind. This disability of my mind. On the lower ribs, this abuse of my mind. This abuse of my mind. Thumbnail, this wrong use of my mind. This wrong use of my mind. Forefinger, this disability of my mind. This disability of my mind. Middle finger, this abuse of my mind. This abuse of my mind. Little finger, this wrong use of my mind. This wrong use of my mind. Karate chop. Still I deeply and completely Still I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. I choose to I choose to be free from this disability. be free from this disability. And I deeply and completely And I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. I choose to I choose let go abusing my mind. to let go abusing my mind. And I deeply and completely And I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. I choose to I choose to properly use my mind properly use my mind for my highest good for my highest good and for the highest good of the infinite being. and for the highest good of infinite being. And I deeply and completely And I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. Eyebrow point, free from this disability of the mind. Free from this disability of my mind. Eye end point, let go abusing my mind. Let go abusing my mind. Below the eyes, use my mind for the highest good. Use my mind for the highest good. Below the nose, free from this disability of my mind. Free from this disability of my mind. Chin groove, let go of abusing my mind. Let go of abusing my mind. Below the collarbone, rightly use my mind for my highest good. Rightly use my mind for my highest good. Below the armpit, free from this disability of my mind. Free from this. On the lower ribs, let go of abusing my mind. Let go of abusing my mind. Thumbnail, properly use my mind for my highest good. Properly use for my mind for my highest good. Forefinger, free from this disability. Free from this disability. Middle finger, let go abusing mind. Let go abusing my mind. Little finger, proper use of mind for my highest good. Proper use for my for highest good. Karate chop. And I deeply and completely And I deeply and completely love, love, forgive, forgive, and accept myself. and accept myself. Massage the tender spot on the shoulder as you take a deep breath in. Gently press and hold the point as you breathe out long from the mouth.
Anything to say? Anyone? मुझे ऐसा आया, ट्रेन योर माइंड। करेक्ट। तो कैसे ट्रेन करने का? वो नहीं है। I choose to know how to train my mind. 2-3 बार करेगी तो जवाब आएगा। What does training of mind mean? What are the different ways that are used for training mind? You can even do Google search. That might help you. What are the different ways of training the mind? Yoga itself is training of mind only. Yoga Chitta Vritti Nirodha, VCT itself is training of mind. But find out. Clarity आनी चाहिए ना कि मैं क्या करूंगी ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज अ वेरी लार्जर जनरल थिंग, लेकिन टू एक्चुअली डू द ट्रेनिंग यू नीड टू पिन पॉइंट कि माइंड के अंदर ये डिफेक्ट है, इस समय माइंड को ये करना चाहिए, उसके बदले वो ये कर रहा है, तो यहां से उसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए मैं कैसे ट्रेन करूं। तो एक्चुअल काम के लिए स्पेसिफिक चाहिए, इसलिए वीसीटी काम करता है। इन जनरल बोलो तो हमने वीसीटी जनरल किया तो हमको जनरल आंसर मिला। यदि एक सबको स्पेसिफिक के ऊपर तुम बोलते कि नहीं मेरे माइंड के अंदर ये एक जो डिफेक्ट है मेरे को इसको ठीक करना है। अब जैसे एक है रात को बाकी सारा काम हो गया, अभी सोने जाना है, उस समय हम कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या तो वो व्हाट्सएप फेसबुक चेक कर रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, और कितना टाइम निकल जाता है मालूम नहीं, नींद का कुछ हो जाता है। हर रोज तय करते हैं नहीं दिस इज नॉट गुड, आई नो इट्स, मेरे को रूटीन रखना है, फिर सुबह उठने में देर होगी वगैरह, लेकिन रोज वही काम करते हैं हम। तो इसके लिए अब तुमको माइंड को ट्रेन करना है। तो ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है, उसके ऊपर तुम वीसीटी कर सकते हो, जब याद आए तब कर लो। नहीं तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि अच्छा आज शाम को जब ऐसा मन करेगा तो मैं वीसीटी करूंगी, वो नहीं होएगा। अभी सोच रहे हो ना आज शाम को, अभी कर डालो। तो हो सकता है कि शाम को टाइम के ऊपर तुमको याद आ जाएगा और तुम अपने माइंड को वहां से हटा सकोगे। उस समय वीसीटी करना भी याद आएगा और तुम कर भी लोगे और हटा भी लोगे। 1 2 3 दिन करने करते वो सफल होने लगोगे। फिर उसको वहां पर रखने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम और वीसीटी कर सकते हो, उसके अंदर चॉइस थोड़ा बढ़ा दो कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस विथ ईज। मुझे याद करके अपने आप को वहां से फोर्सफुली खींचना पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आई चूज टू मेक दिस माई इजी रूटीन, है ना। ऐसे करके ये प्रोसेस है। तो इन जनरल समझ में आ गया, जवाब भी मिल गया, जनरल आंसर भी मिल गया। लेकिन अब जनरल को स्पेसिफिक में लगाने के लिए तुमको स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, तो तुम स्पेसिफिक चॉइस भी कर सकोगे, फिर स्पेसिफिक एक्शन भी होगा। तो वो एक एक पॉइंट माइनस वाला कम होता जाएगा, प्लस वाला बढ़ता जाएगा। एक मिनट, सुमति तुझे क्या हो गया, तुझे क्या आया? लक्ष्मी आपको क्या आया? अच्छा मेरे ना थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई आई नो थी। डिस्कनेक्ट हो गई थी, तूने जब ज्वाइन मैंने किया तब हमने एक ही स्टेटमेंट किया था। नहीं हाँ। सॉरी न, तो मैंने ये किया कि एक टेबल बनाया और वो 11 इंचेस लिख के वो डेफनेस नंबनेस वो लिखा और एक नंबर दिया। राइट। सो ये जो नंबर आया इज लाइक आपने टोटल किया क्या इन सब का? नहीं नहीं नहीं, हमने खाली ये देखा कि कौन सा वाला सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट के अलावा अच्छा इन्होंने 2-3 बोले, उसमें माइंड वॉज द कॉमन वन। सो वी सेड ओके हाँ, लेट्स डू वीसीटी ऑन माइंड, disability of the mind. They both had their own examples of what are the kind of disabilities that they are experiencing of mind. So मैंने कहा अलग अलग
ग्रुप के अंदर जरा होना मुश्किल होता है, तो मैंने इन जनरल लेके किया दिस डिसेबिलिटी, Right. सो दे आर एड्रेसिंग देयर ओन डिसेबिलिटी ईच वन, Yes. और बाकी तो जनरल था ही, तो शी गॉट वन आंसर. So if you have got some awareness, you all can share also. हाँ, बिकॉज मैम जब हम इंद्रियस पे देखते हैं तो हमारा डिसेबिलिटी लगता नहीं है, एक या दो ही लगता है. हम्म. स्पेसिफिक इंद्रिय, डेफनेस, नमनेस, हमें तो लग रहा है कि हमें सब सुनाई दे रहा है. हम्म. और लेकिन ना मैम, जब कोई और हमें मिलता है जिसका सुनना हमसे भी ज्यादा शार्प हो, उस समय हमें रियलाइज होता है कि अरे यार हमारा दिसिंग नहीं है. यस. हाँ, यानी कि ये एबिलिटी हमारे में है, हम इतनी यूज कर रहे हैं, हाँ. इसको और एनहांस किया जा सकता है. यस. तो वो तो ये, डिसेबिलिटी का हमें एहसास ही नहीं होता. हाँ, तो इसीलिए तो हमने कहा कि अभी का नंबर जो है, जो अभी समझ में आ रहा है वो लिखो. हो सकता है कल अवेयरनेस बढ़ेगी और वो नंबर चेंज हो सकता या है ना. इसलिए इसको हर रोज इस एक्सरसाइज को करना, कि आज कितना नंबर देती हूं मैं अपने आप को, क्योंकि हर रोज तुम अब ऑब्जर्व करोगे. आज जो काम शुरू हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा अपने आप का, हर एक इंद्रियों के ऊपर ध्यान भी जाएगा, है ना. तो जब भी जितना भी ध्यान जाता है, दिन में एक बार वापस से नंबर्स दो अपने आप को, बिना ये देखे कि कल कितना दिया था. तो तुम देखोगे कि ओवरऑल वीक के अंदर अवेयरनेस तुम्हारा कितना किस चीज के ऊपर बढ़ा है, कहाँ पर तुम अपने आप को जबरदस्ती नीचा दिखा रहे थे, कहाँ पर तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार्क का समझा था और कम है. ऐसा सब समझ में आएगा, और वो सही समझ आएगी तभी हम स्पेसिफिक वीसीटी कर पाएंगे, और स्पेसिफिक करेंगे तो फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. हाँ मैम, स्पेसिफिक से याद आया, देखो अभी मैंने गूगल में डाला हाउ टू ट्रेन द माइंड. ओके, तो उसमें ऑप्शन दिया है फॉर फोकस, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर बेटर अहेड, देन मेमोरी, देन इमीडिएट कंसंट्रेशन, राइट नाउ व्हाट आर वी डूइंग. हम्म. बहुत सारी ऐसे उन लोगों ने ये दिया है. तो उन सब की अवेयरनेस होगी और उसके ऊपर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं फिर, है ना. ठीक है. कि अभी मेरा कंसंट्रेशन कितना है, कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना मैं केपेबल हूँ, क्या मैं पूरा लगा रही हूँ, है ना. और यस. जो इतनी सी चीज मेरे को याद नहीं रहती है, क्या मैं उसको कोशिश करके याद कर सकती हूँ. हम्म? क्या मेरी मेमोरी के बीच में आ रहा है, क्यों नहीं याद रह रहा है, क्या क्या करूं तो मेरी मेमोरी ठीक होएगी. ये सब जान के फिर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने आप. अच्छा किया ना, गूगल किया. सुमति, तेरे को क्या बोलना है. मैं शांत हूँ मैम. मेरे को कुछ तो ऐसा कुछ भी ऐसा आई एम नॉट ठीक है, रेस्टलेस अच्छा है, अभी, शांत तो रहना मुझे भी मुझे एक अच्छा ठीक है. है. न्यूट्रल स्टेट में पहुंच गए, यानी कि तुम काम आगे करने के लिए तैयार हो, अवेयरनेस आएगा. हाँ, मुझे वही स्टेट इज अ वेरी फीलिंग गुड स्टेट. रहती है. तो एटलीस्ट न्यूट्रल पे आ गई तो अवेयरनेस भी आएगा, इट विल फॉलो. sometime in the day you will get the awareness. चले. यस, 4 बज गए. हाँ, चलो, थैंक यू. वेलकम. अच्छा लगा वीसीटी करके मेरे को.